Hi, hello everyone. Welcome to today's session of Certified Ethical Hacking by One Byte Labs. I hope you are able to hear me and able to see the screen. Okay, so in the last session, we discussed sniffing, right? Everyone. So we are having pending practicals from sniffing. So let's complete that today. In the last session, we discussed about sniffing, where we did ARP poisoning attack with the help of Cain and Abel. We did MAC spoofing and all, right? So I guess you also tried this practical in your own system. If you're having any questions, you can ask. There is no recording pending. Okay, so let's start today's session now. So today we'll do the practical of few more network sniffing with the help of Wireshark. Okay, so first we'll be using a tool known as Wireshark, which is used to do sniffing on the network, and it is also used to get clear text, credentials, passwords, and some sensitive information. So that we'll see right now. Okay, after that we'll see how to use an OmniPeak network protocol analyzer, which is also a tool used to analyze the whole network, which you can use for detecting information in a particular network. So after that, we'll proceed with the detection techniques, like how you can detect if someone is trying to do sniffing or not. Suppose if you are also connected in a particular network where anyone can connect, so how can you protect yourself from these things? Like how can you make sure no one is trying to sniff your data? So let's first start from Wireshark. Okay, so first we have seen Cain and Abel, then we have seen how to do MAC flooding, MAC spoofing, and now we'll see Wireshark. Okay, so in this particular practical, we'll be using two machines. Obviously, one machine as an attacker machine, one machine as a victim machine. So you can choose anyone. Okay, so I will choose Windows 10 as the target machine and Windows 19 server as a host machine. You can say attacker machine. Okay, so let's log into server 19. My screen is already shared with every one of you. Okay. Now, once we are in the Windows Server 2019, you just need to use the Wireshark. Okay. So you see Wireshark is available here in your toolkit, the CEH toolkit. You'll see Wireshark in the toolkit. Okay. Just install that and open that. Once the Wireshark will start, जैसे ही Wireshark start होगा, you need to select your adapter. अब सबके कंप्यूटर में अलग अलग अडेप्टर होता है. सो कोई ईथरनेट यूज कर रहे होंगे, कोई वायरलेस अडेप्टर यूज कर रहे होंगे. सो अगर आप ये वायरलेस नेटवर्क पे करना चाहते हो, यू नीड टू हैव अ वायरलेस अडेप्टर. ठीक है, आपके लैपटॉप में अगर वाईफाई नहीं है, सो यू वोंट बी एबल टू स्निफ द वायरलेस नेटवर्क्स. अगर ईथरनेट है तो ईथरनेट उतना सक्सेसफुल नहीं होता है, बिकॉज वो सिर्फ लोकल एरिया में काम करता है. So for Wi-Fi, you need to have the Wi-Fi adapter, and that adapter you need to select. So let's open this. So it's loading. So in this iLab, this will be an Ethernet connection, because ये local connection होगा, सारे systems के बीच local connection है ये. So इसमें कोई issue नहीं है.
just select the Ethernet adapter. Okay, double click on this. Okay, internal adapter, you are don't be confused between Wi-Fi internal adapter. Wi-Fi के लिए ही इंटरनल अडेप्टर होता है, एक होता है एक्सटर्नल अडेप्टर, एक होता है इंटरनल अडेप्टर, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं यहाँ पे इंटरनल की बात कर रहा हूँ। ओके, सो यू सी ऑल दी लॉग्स स्टार्टेड कैप्चरिंग। सो ये जो लॉग्स है कैप्चर हो रहा है बिकॉज मैंने इथरनेट से कनेक्ट हो गया हूँ मैं। सो जितने भी सिस्टम्स हैं, अभी तो एक ही सिस्टम लॉगिन है तो वहीं से कनेक्शंस आ रहे हैं। जब मैं विंडोज 10 में जाऊंगा या किसी और सिस्टम में जाऊंगा तो आई विल बी एबल टू सी एवरीथिंग हियर। तो ये क्या है, ये पैकेट्स हैं जो कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं। ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, और ये प्रोटोकॉल है, ये लेंथ है, ये इन्फॉर्मेशन है, और ये टाइम है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे नेटवर्क्स के थ्रू जा रहे हैं, आ रहे हैं। नाउ वी नीड टू स्निफ दीज थिंग्स ओनली। अगर इसी बीच किसी ने कुछ पासवर्ड शेयर किया हो तो वो कैसे दिखेगा हम लोग को यहाँ पे, वो हम देखेंगे। तो उसके लिए फिल्टर करना बहुत ही इजी है। आपको जैसे ही चले पता कि कोई नेटवर्क स्निफिंग चल रहा है तो आप यहाँ पे डिस्प्ले फिल्टर लगा के उस पासवर्ड को आप फैच कर सकते हो उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का। यूजिंग VMware कैन वी यूज अवर डेस्कटॉप एज विक्टिम मशीन? यस यू कैन। आप VMware यूज कर रहे हो और उसमें आपने मान लो कि 2 विंडोज इंस्टॉल कर दिया, विंडोज 10, कोई दिक्कत नहीं है। एक विंडोज 10 को आप विक्टिम में रख लो, एक विंडोज 10 को अटैकर में रख लो। क्लियर? ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड टू गो टू विंडोज 10 एंड वहां पे हमको पासवर्ड डालने का ट्राई करना है। ठीक है, तो लेट्स गो टू विंडोज 10। यहाँ पे कैप्चरिंग ऑलरेडी चल रहा है। और जैसे कि हम लोगों ने केन एनेबल में क्या किया था, केन एनेबल में हम लोगों ने पासवर्ड डिटेक्ट किया था ना, किसी वेबसाइट पे जाके हम लोगों ने पासवर्ड डाला, वो डिटेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम वायरशार्क में वही चीज करेंगे। ठीक है, एक वेबसाइट पे जाओ, कोई वेबसाइट पे चल जाओ। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है इसी काउंसिल का ही, उसे कहते हैं मूवी स्कोप, आई थिंक सो। मूवी स्कोप, ये मे भी शायद इंटरनल वेबसाइट है। एवरीवन ट्राई टू ओपन मूवी स्कोप। आप में खुल रहा है क्या? लेट मी द लाइव चैट। मूवी स्कोप, MOVIE scope.com। अगर आप में नहीं ओपन हो रहा है तो आप प्रीवियस सेशन में से जो था वो आप यूज कर सकते हो, डोमेन नेम जो था। यस और नो, लेट मी नो। Okay, let's proceed. Moviescope.com. Let's open this. No, it's not opening. Now it's opening. ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, वी जस्ट नीड टू एंटर द यूजर नेम एंड द पासवर्ड। सो कोई भी आप यूजर नेम एंटर कर सकते हो।
जैसे कि मैं एंटर करता हूँ सैम टेस्ट, नाउ लॉगिन। तो यहाँ पे जो है लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब जो लॉगिन हो चुका है, सो जस्ट वी नीड टू जस्ट गो बैक टू द सर्वर 2019, और यहाँ पे अभी हम लोग को फिल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, पहले तो हम स्टॉप करेंगे कैप्चर करना, क्योंकि हमको पता है कि किसी ने पासवर्ड डाला है। अब स्टॉप कर दो कैप्चर करना। हमारे पास सारे के सारे पैकेट्स आए हुए हैं। अब इसी पूरे लॉग में से, अब देखो बहुत बड़ा लॉग है, बहुत बड़ा लॉग है। अब इसी सारे लॉग में से कहीं बीच में पासवर्ड होगा वो सेव, जो भी यूज यूज उस पर्टिकुलर यूजर ने एंटर किया था। तो पहला स्टेप क्या होता है कि जब भी आप किसी नेटवर्क में बैठो, कैप्चर करो, तो कम से कम 1-2 घंटे तो बैठ के कैप्चर करो, कम से कम 1 से 2 घंटे। क्योंकि 1 से 2 घंटे में किसी न किसी यूजर ने तो लॉगिन करने का ट्राई किया ही होगा ऑब्वियसली। जब आप 1-2 घंटे वेट कर लो, कैप्चर कर लो, तो फाइल में जाके इसको स्टॉप करके पहले इसको सेव एज कर लेना, क्योंकि जो पैकेट्स हैं इसको सेव करना पहले जरूरी है, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं, टेस्ट। अब वो हो चुका है सेव, ठीक है। जब सेव हो गया है, तब उस सेव फाइल का यूज किया है। सपोज कि नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा उसको डिक्रिप्ट करने हैं कंटेंट्स को, और क्लियर टेक्स्ट क्रेडेंशियल्स निकालने, तो बाद में भी आप कर सकते हो, बिकॉज नहीं तो आप इसको क्लोज करोगे तो फिर कभी मिलने वाला है नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करना है। फिल्टर में क्या अप्लाई करना है कि जो फॉर्म को सबमिट किया जाता है, जब भी कोई फॉर्म भरते हैं हम लोग, चाहे वो लॉगिन फॉर्म हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म हो, उस फॉर्म को जब भरते हैं, उधर एक सबमिट बटन होता है, या तो लॉगिन बटन होता है, या तो साइन अप बटन होता है। उस बटन पे जब क्लिक करते हैं तो एक प्रोटोकॉल हिट होता है, जिसको कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल, और वो होता है इक्वल टू पोस्ट। पोस्ट मतलब भेजना, गेट मतलब फैच करना। तो जब पोस्ट आप सर्च करोगे, तब आपको सारे के सारे रिक्वेस्ट का लिस्ट मिल जाएगा जिसमें पोस्ट हुए हैं, यानी कि जो एक किसी के कंप्यूटर से सर्वर तक गया है कोई भी रिक्वेस्ट, ठीक है। तो मेथड इक्वल टू क्या, पोस्ट। ये आपको सर्च करना है। इससे क्या चलता है पता, कि फॉर्म सबमिट्स कितने हुए हैं, कितने लोगों ने फॉर्म भर के भेजा है सर्वर पे। तो हमको मिलता है सिर्फ एक ही फॉर्म सबमिट, जो कि ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ओपन करके इसको कुछ डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूजर नेम सैम, पासवर्ड टेस्ट, एंड बटन लॉगिन लॉगिन। तो ये जो है हमको ये मिला किधर से, 10.10.10 यानी विंडोज 10, डेस्टिनेशन 10.10.19, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप किसी और वेबसाइट पे जाओ, सर्च करो, कोई वेबसाइट पे लॉगिन करो, तो दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम एक ट्राई किया था ना, वो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। दोबारा हम स्निफिंग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट अगेन। स्टार्ट नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट। फिल्टर लगता है अप्लाई हो गया है। Just a minute. हाँ, अब स्टार्ट हो गया। लेट्स गो बैक टू दिस सर्वर विंडोज 10। और विंडोज 10 में हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या वेबसाइट ओपन किया था, सपोर्ट डॉट विद फ्लोट्स, आई थिंक सो। withfloats.com, ठीक है। ये पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो। दोबारा हम डालते हैं एडमिन पासवर्ड, ठीक है। गलत तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट अज्यूम कि यहाँ पे लॉगिन हो गया, ठीक है। अब जाएंगे वापस हम विंडोज सर्वर, जहाँ पे हम रन कर रहे हैं अपना कैप्चरिंग टूल, और वहां पे इसको स्टॉप कर देंगे दोबारा। अब जैसे स्टॉप कर देंगे, अब यहाँ पे हमारा डेटा आ गया होगा। अब दोबारा हम उसको सर्च करते हैं HTTP, यही चीज।
यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं हुआ है। आई थिंक उसका पोस्ट मेथड जो है वो डिफरेंट होगा। वी नीड टू चेक दैट। या तो ये लॉगिन नहीं हुआ होगा। अगर सक्सेसफुली लॉगिन पे मेरे ख्याल से अगर ट्रिगर हो रहा है वो पोस्ट, तो सक्सेसफुल लॉगिन पे ही हमको जो है डेटा मिलेगा, या ये हो सकता है। तो ठीक है, तो जैसे ही यही चीज हमको ट्राई करना होगा, बिकॉज जनरली जो पोस्ट होता है वो यही मेथड होता है। लेट मी शो यू वंस मोर टाइम। ये चेक करने के लिए क्या कर सकते हो आप, राइट क्लिक करके आप हर एक पेज का चेक कर सकते हो, फेसबुक का, जीमेल का, सबका आपको आइडिया लग जाएगा कि वो लोग कैसे डेटा को भेजते हैं। तो व्यू पेज सोर्स पे जाना, व्यू पेज सोर्स पे आप जाओ, फॉर्म, जहाँ पे फॉर्म है वो बना हुआ, फॉर्म बना हुआ है, यू विल सी यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हुआ है। एक्शन, एक्शन में जनरली क्या होता है कि लोग यहाँ पे डायरेक्टली पोस्ट, तो यहाँ मेथड पोस्ट है, ठीक है। अब एक्शन में जनरली लिंक दिया जाता है उस पर्टिकुलर पेज का जहाँ पे ये यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोसेस होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट यूज हो रहा है। वो जावास्क्रिप्ट के पास हमको चेक करना होगा जाके, ये जावास्क्रिप्ट है। ओके, या तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे पेज पे ही चेक हो जा रहा है रियल टाइम में कि वो यूजर नेम और पासवर्ड गलत है कि सही है। इसी कारण से हमको यहाँ पे पोस्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। जनरली वेबसाइट्स में क्या होते हैं कि यहाँ पे पोस्ट मेथड के हेल्प से अगर यूजर नेम पासवर्ड रॉन्ग भी है तब भी वो सबमिट होगा। बट जिस पेज पे अभी हम लोगों ने ट्राई किया वहां पे रॉन्ग पे सबमिट नहीं हो रहा है, इसलिए हमको डेटा यहाँ नहीं आ रहा है। जब यूजर नेम पासवर्ड सही होगा, करेक्ट होगा, तो जाके यहाँ पोस्ट मेथड जो है ये ट्रिगर हो जाएगा एंड वी विल बी एबल टू सी दी पर्टिकुलर डिटेल्स जो भी वहां पे क्लियर टेक्स्ट में आया होगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी डू वायर शार्क पासवर्ड क्रैकिंग, पासवर्ड डिस्कवरी विद द हेल्प ऑफ वायर शार्क टूल। अब यहाँ पे आप कोई भी टूल यूज करो, सबका एक तरह से ऑब्जेक्टिव सेम होता है। बट द ओनली डिफरेंस इज कि वायर शार्क पैकेट कैप्चरिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, और आप चाहो तो उसको सेव करके बाद में अगर आपको डिक्रिप्ट करना हो तब भी आप जो है वो कर सकते हो, चाहे वो कोई भी तरीके का पासवर्ड हो, ठीक है। तो इज वन मोर वेबसाइट, goodshopping.com। वहां पे भी जाके आप कुछ भी करो, शॉपिंग करो, क्रेडिट का, डेबिट का डिटेल्स डालो, और आप जब उसको सर्च करोगे पोस्ट मेथड में तो वहां पे डिटेल्स जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो एक हो गया केन एनेबल एंड द सेकंड वन इज वाई शार्क। गॉट इट। नाउ आफ्टर दैट देयर इज a tool known as OmniPeak। OmniPeak भी एक तरह से वायर शार्क की तरह ही होता है, हल्का सा बस डिफरेंस उसमें। OmniPeak जो है वो जनरली पासवर्ड क्रैकिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है, वो वायरशार्क की तरह बस कैप्चर करके फाइल को सेव कर लेने के लिए यूज किया जाता है और नेटवर्क को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सो लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को एक 30 डेज का ट्राई लेना होगा यहाँ पे। ओके ठीक है, एक काम करते हैं, ओमनी पीक का प्रैक्टिकल एज असाइनमेंट आपको देते हैं। सिंपल सा क्या चीज है कि यू जस्ट नीड टू यूज ओमनी पीक। ओमनी पीक जब एक बार आप यूज करना स्टार्ट करोगे, देन आपको बस एक कैप्चर स्टार्ट करना है, न्यू कैप्चर, ठीक है। कैप्चर जब स्टार्ट करोगे आप अपना अडेप्टर सेलेक्ट करोगे, जैसे कि हम वाई शार्क में करते हैं, अडेप्टर सेलेक्ट, स्टार्ट कैप्चरिंग। देन इफ यू ओपन एनी वेबसाइट, अगर आप फेसबुक भी ओपन कर लो, चाहे वो HTTPS हो, कोई भी हो, फेसबुक हो, जीमेल हो, वहां पे आप पासवर्ड डालो, वो पासवर्ड जो है फिर ओमनी पीक में जो कैप्चर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। यू कैन सी इन द इमेज लाइक दिस, वो सारे सारे पैकेट्स जो हैं वो ओमनी पीक में कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स हाउ वी सी। So this is assignment for every one of you to use OmniPeak network sniffing tool, ठीक है। एनी क्वेश्चन से एनीवन, स्निफिंग में किसी को कोई डाउट है, वायर शार्क में, OmniPeak में, बोथ आर सेम।
ओके, आई हैव शेयर्ड वन लिंक, उस लिंक पे आपको जाके अकाउंट क्रिएट करना है. यू विल बी गेटिंग 3 days of trial. After that, you need to use OmniPeak. This is the software which is available in your CEH tools directory. Just install this. Once you install, you just need to use the key. जो आपको की मिला है ट्रायल में, उस की को यहाँ डाल के अपने मेल एड्रेस के साथ उस सॉफ्टवेयर को रजिस्टर कर लेना है. जब आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा, सॉफ्टवेयर जब ओपन हो जाएगा, आपको बस न्यू कैप्चर करना है. ठीक है, न्यू कैप्चर पे जब क्लिक, जो कि यहाँ पे है, जो वायरशार्क में ये है कैप्चर करना, वही वहां पे है वो न्यू कैप्चर करना. जब न्यू कैप्चर करोगे, आपको आएगा अपना अडेप्टर सेलेक्ट करने के लिए. आपके में हो सकता है वायरलेस हो, इथरनेट हो, आप बस उसको सेलेक्ट कर लेना. ठीक है, वंस स्टार्ट सेलेक्टिंग, आपका जो कैप्चर है वो स्टार्ट हो जाएगा. कैप्चर जब स्टार्ट हो जाएगा तो आप किसी वेबसाइट पर जाना, किसी भी अलग कंप्यूटर से जो कि आपके नेटवर्क में है, आप उससे फेसबुक लॉगिन करना, जीमेल लॉगिन करना, कुछ भी लॉगिन करना, कोई दिक्कत नहीं. लॉगिन जब कर लोगे, यू विल बी एबल टू just go back to the OmniPeak and then stop capture. Once you stop the capture, आपको कुछ इस तरीके से डेटा दिखाई देंगे. ये जो है, ये आपका एक तरह से टैब हो गया जहां पे दिखाएगा कौन सा आईपी एड्रेस से कितना कम्युनिकेशन हुआ है, कितना नेटवर्क का यूजेज हुआ है, और आप हर एक नेटवर्क पे जाके, हर एक आईपी पे जाके देख पाओगे कि किसने क्या ब्राउज किया है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर आया तो ये सारे के सारे इवेंट्स हैं. इस इवेंट में कोई एक इवेंट होगा जहाँ पे कोई पासवर्ड डाल रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा. उसी में से सपोज किसी ने फेसबुक पे लॉगिन किया. ठीक है, किसी ने फेसबुक पे लॉगिन किया क्लाइंट सर्वर में, और वहां पे फिर आपको दिखाई दिया कि ये सारे के सारे एड्रेसेस हैं. उसमें से आपको आईपी एड्रेस मिल सकता है आपके कंप्यूटर का, एंड कहां से कहां वो डेटा गया है. जैसे क्लाइंट एड्रेस यानी कि आपका लैपटॉप, सर्वर एड्रेस यानी कि फेसबुक का, किसी ने फेसबुक अगर यूज किया है तो आप उस पर डबल क्लिक करके देन आप रिक्वेस्ट देख सकते हो कि उसने क्या सेंड किया एक्चुअल में, और आप इवेंट का लॉग भी देख सकते हो कि उसने क्या एक्चुअल में सेंड किया है. कुछ अगर पासवर्ड होगा आपको दिख जाएगा, कुछ अगर नॉर्मल चीज होगा वो भी दिख जाएगा. ठीक है, so this is how we use the OmniPeak. तो OmniPeak जो है वो वायरशार्क से अलग टूल है, बिकॉज वो बहुत से डेटा जो है वो दिखाता है. ठीक है, सिर्फ एक दो नहीं, मतलब बहुत डेटा दिखाता है. देख सकते हो कि सारे सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, डैशबोर्ड्स, कैप्चर्स, एक्सपर्ट वेब, वॉइस एंड वीडियो, सारे की सारी चीजें, चाहे वो वीआईपी कॉल्स हो, वीडियो कॉल्स हो, सारा का सारा डेटा जो है ये कैप्चर करता है जो OmniPeak है. ओके, यहाँ पे आप कंटेंट में जाओगे अगर, तो कंटेंट आपको डेटा मिल जाएगा जिसके हेल्प से आपने लॉगिन किया है, जो क्रेडेंशियल्स है. लेट मी शो यू. थिंक यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा है, नो वरीज. ठीक है, तो ऐसे आपने कैप्चर कर लेने के बाद उसको बस सेव कर लेना, जैसे कि आपने वायरशार्क में सेव किया, तो दैट्स इट, ताकि उसको फ्यूचर में हम लोग यूज कर सके. जब वाईफाई क्रैकिंग हम लोग देखेंगे तो वाईफाई क्रैकिंग में वायरशार्क का यूज आता है. यस, वायरशार्क का यूज वहां पे आता है. हम वायरशार्क की हेल्प से एक लोकल नेटवर्क में कनेक्ट होके हम उसका पैकेट कैप्चर करेंगे. जब पैकेट कैप्चर कर लेंगे तो किसी ने तो पासवर्ड डाला ही होगा, उसको हम फाइल को सेव कर लेंगे. जब फाइल को हम सेव कर लेंगे तो वो क्या होता है, एक सिक्योर प्रोटोकॉल पे काम करता है वाईफाई वाला, तो हमको क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड नहीं दिखाई देगा, जस्ट लाइक HTTPS. सो व्हाट विल डू इज, विद द हेल्प ऑफ द पर्टिकुलर फाइल जो कि हम लोगों ने सेव किया है, उसको एयर क्रैक NG नाम के टूल में हम लोग डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे. देन वहां पे हमको वाईफाई का जो पासवर्ड है वो मिल जाएगा, दैट विल सी इन अवर वाईफाई क्रैकिंग मॉड्यूल. सो दिस इज हाउ वी यूज द OmniPeak. ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं अपने लास्ट उस पे जो है डिटेक्शन मेथड्स. तो सपोज कि आप भी किसी ऐसे नेटवर्क में कनेक्टेड हो जहां पे कोई एक हैकर आपका नेटवर्क को स्निफ करने का ट्राई कर रहा है. ओके, अ हैकर इज ट्राइंग टू स्निफ योर नेटवर्क एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट. सो हाउ टू नो इफ समवन इज ट्राइंग टू स्निफ और नॉट? बहुत ही सिंपल है, लेट मी शो यू. तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि विंडोज 10 जो है वो अटैकर मशीन है और विंडोज 19 जो है वो एक विक्टिम का मशीन है. ठीक है,
तो विंडोज 19 में क्या करना पड़ेगा, यानी कि हमारे मशीन में हम विक्टिम है तो हमको प्रोटेक्शन करना है अपने आप का। हम लोग क्या करेंगे, अपने सिस्टम में एक टूल इंस्टॉल कर लें जिसका नाम है ज़ार्प। तो लेट्स गो टू ch tools, sniffing, डिटेक्शन, ज़ार्प। अब ज़ार्प क्या है, ज़ार्प आपके सिस्टम में एनी टाइम काम करते रहेगा, और जैसी ही कोई पॉइजनिंग या तो स्निफिंग, चाहे वो कोई भी टूल यूज करे, चाहे वाई शार्क हो चाहे वो केननेबल हो, वो आपको एक अलर्ट दे देगा। ठीक है, तो ये है ज़ार्प। ठीक है, अब ये ज़ार्प क्या कह रहा है कि नो एआरपी अटैक्स, अभी कोई अटैक्स नहीं हो रहे हैं, सब चीज फाइन है, एवरीथिंग इज गुड। नाउ अब क्या करेंगे कि ये 19 सिस्टम है, अब इसमें हम लोग को अटैक करना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्या करते हैं, वापस जाते हैं हम लोग अपने विंडोज 10 में, और वहां पे केन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो वी आर इन टू द केन। क्या करना है हमको, पहले तो इसको कॉन्फ़िगर करना है, अपना अडाप्टर सेलेक्ट करना है। आफ्टर सेलेक्टिंग द अडाप्टर, जस्ट स्टार्ट एंड स्टॉप द स्नीफर। तो स्टार्ट हो गया, जाना है स्नीफर में, क्लिक करिए प्लस पे, ऑल होस्ट इन माय सबनेट, ऑल टेस्ट, सेलेक्ट ओके। सारे आईपी एड्रेस को ये स्कैन कर लेगा। लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट। डन, ओके। नाउ गो टू द एपीआर टैब, जो पॉइजनिंग टैब है, क्लिक हियर, click on plus button, select the IP address, then select the IP address with which you want to perform the ये poisoning। ओके, आप सब सिलेक्ट कर सकते हो, या चाहो तो एक सिलेक्ट कर सकते हो, तो सब सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सब सिलेक्ट हो गया। नाउ यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन स्टार्ट पॉइजनिंग। अभी पॉइजनिंग यहाँ स्टार्ट हो गया, यू सी पॉइजनिंग जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं अपने सर्वर 19 में जाके कि क्या उसने कोई अलर्ट रेस किया है कि आपको कोई स्निफ करने का ट्राई कर रहा है। लेट्स सी, वेट। तो यहाँ पे हमको एक नोटिफिकेशन आया कि एआरपी अटैक्स डिटेक्टेड। ठीक है, और वो आ कहाँ से रहा है, आ रहा है इस गेटवे से, जो कि उस पर्टिकुलर वाईफाई का गेटवे है, और विंडोज 10 से आ रहा है, और अटैक हो रहा है 19 पे। तो ये है जार्प, जिसके हेल्प से हम लोग ये देख सकते हैं। अब जैसे आपको चले पता कि अटैक एआरपी पॉइजनिंग कोई कर रहा है, तो आपको करना क्या है कि बस उस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाना है, बिकॉज और कोई सोल्यूशन तो है नहीं। ठीक है, या और कोई सोल्यूशन है नहीं, आपको बस उस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाना है। तो ये जार्प जो है, इसको यूज करने के लिए आपको कोई की या कोई ऐसा ट्रायल नहीं लेना पड़ेगा। यू कैन जस्ट इंस्टॉल दिस जार्प, एंड जब भी आप कोई ऐसे नेटवर्क में कनेक्ट हो जहाँ पे जिसको यूज करना फ्री है और कोई भी यूज कर सकता है, तो वहाँ पे प्रिकॉशन लेके जस्ट यूज दिस जार्प टूल। आप चाहे अपने ऑफिस में क्यों ना हो, आप चाहे अपने सोसाइटी के फ्री वाईफाई में क्यों ना यूज कर रहे हो, कोई भी कहीं भी जहाँ पे कोई भी आपके अलावा भी उस नेटवर्क में कनेक्ट हो सकता है, तो वहाँ पे ये टूल जो है आप यूज कर सकते हो। So you'll be able to see if someone is trying to do the ARP attack or not. Got it? Any questions in this, anyone? Let me know. You can also minimize this. ये minimize रहेगा और साथ ही साथ काम भी करते रहेगा। So this tool is very important for those who want to protect themselves from sniffing kind of attacks and ARP poisoning attack.
Got it? So this is how we do the detection of the spoofing attacks, sniffing attacks. Okay. Yeah. So that is it for this sniffing, everyone. As an assignment, you all need to perform the OmniPeak. Okay, OmniPeak का practical करना है आपको, और that's it in the sniffing. Let's see after sniffing what do we have. Now the next topic is social engineering. Okay, social engineering. What is social engineering? How to do social engineering? This is very easy topic, because यहाँ पे उतना ऐसे कोई प्रैक्टिकल नहीं है कि आपको सोशल इंजीनियरिंग में जो करना हो. सोशल इंजीनियरिंग इज द वे ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग सोशल मीडिया टेक्निक्स. सोशल टेक्निक्स यानी कि सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, आपका खुद का लॉजिक यूज करके किसी से इंफॉर्मेशन निकलवाना इज ऑल्सो देयर इन द सोशल इंजीनियरिंग. ठीक है, जैसे कि कोई अगर अपने लैपटॉप में लॉग इन करने का ट्राई कर रहा है, आपने उसके साइड में खड़े होकर उसका पासवर्ड देख लिया, सोशल इंजीनियरिंग. ठीक है, किसी एक ऑथोराइज्ड पर्सन को एक्सेस है लैब में आने का. ठीक है, मान लो कंप्यूटर लैब या सर्वर रूम, वहां पे किसी एक को ऑथराइज एक्सेस है, बट आपने क्या किया, वो जब जैसे ही एंटर करता है आपसे पीछे पीछे आप भी एंटर जाते हो. सोशल इंजीनियरिंग. सो ये जो मॉड्यूल है, ये कुछ ऐसा मॉड्यूल है इसमें सारा चीज टेक्निकल नहीं है. ठीक है, सारा चीज जो है टेक्निकल नहीं है. सोशल तरीकों के हेल्प, सोशल तरीकों को यूज करके कैसे इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है, वो है सोशल इंजीनियरिंग. Yes, we can use that, Harsh. Single system. You need to install multiple operating systems in VMware. VMware install करो, उसमें multiple operating system install करो. Okay. Okay. So that is it for today's session, everyone. You can now leave the class. Have a good day ahead. Let me check कितने modules, कितने recording pending है. अगर नहीं है तो upload कर दिया जाएगा आज ही. Okay, everyone. Thank you for joining. You can now leave the class, perform the assignment, and that's it. Bye bye, everyone.